About 4-5 days before her departure, उसके जाने से 4-5 दिन पहले आप सबको याद है कि the Taliban takeover of Afghanistan had happened. Taliban had come into Afghanistan और जो सरकार थी वो बदल चुकी थी और जो तालिबान का जो हेडक्वार्टर्स था आउट ऑफ अफगानिस्तान दैट वाज इन दोहा. न्यूज़ में बार बार आ रहा था द आउट ऑफ अफगानिस्तान हेडक्वार्टर्स ऑफ तालिबान दोहा. नेगोशिएशन टॉक्स व्हाटएवर. तो मेरे दिमाग में दो चीजें एज ए मिलिट्री मैन घूम रही थी कि शुड वी लेट हर गो, बट द फादर इन मी वाज टेलिंग मी कि यहाँ से जाना ठीक नहीं है. वी हर्ड ऑफ कंधार हाईजैकिंग, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. मेरे दिमाग में घूम रहा था. सो देयर वाज लॉट ऑफ एक्सटर्नल काम बट देयर वाज लॉट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. My auntie was also going through the same emotion, but she was also not telling me because if you have to change the flight, it costs money. So anyway, about 4 days prior to that, I cancelled that ticket without asking anybody, and I booked my daughter on British Airways, which was a direct flight. And it costed quite a bit of money, 1,07,000 I remember in those days. So I was mentally at peace कि चलो ठीक है टिकट आ गई है, बच्चा आराम से जाएगा. मैं शाम को ऑफिस से वापस आया and I was going for a walk. तो मेरे पास SMS आया मेरे फोन पे कि जो पैसे थे वो बैंक में 1,07,000 वापस आ गए. What it meant was that ticket is null and void. जब पैसे आपके अकाउंट में आ गए तो टिकट तो खारिज हो गई. So I was very disturbed. I gave a call to my daughter and said कि चेक करो कस्टमर केयर से कि भी ऐसे ऐसे हो गया है. तो दिल्ली में ब्रिटिश एयरवेज वाले फोन नहीं उठा रहे थे. We gave a call to London and after 15-20 minutes of wait, they said कि PNR नंबर जो है alive है. So जब उसका जाने का समय आया, so I had accompanied her to the airport and मेरे को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं हुई थी. तो she had one odd size bag. तो स्टूडेंट टाइम होता है इस टाइम पे जाने का. सब बच्चे अपने अपने पढ़ाई के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस टाइम पे जा रहे हैं. So maximum children at the counter were the students and सबके पास सामान ज्यादा होता है. पूरे एक साल के लिए जा रहे हो. Mothers give you आटा, दाल, चिवड़ा, चाय बनाने का. So everybody has got some luggage more than authorized. So every person, Auntie, I request you avoid that. So everybody was paying 5,000, 6,000 penalty before getting the boarding passes. So she also went, so I gave her the credit card. I said, तेरे से भी मांगेंगे, तू भी दे देना. And she had the oddest size of the bag. So she came with a boarding pass. I said, how much you paid? She said, पापा मेरे से ना पैसे मांगे ही नहीं उन्होंने. वो जो काउंटर पे आंटी थी, वो गुरुजी का ना ब्रेसलेट पहन के बैठी हुई थी. So गुरुजी was sitting even there. So she moved and she reached Edinburgh. The money which the bankers returned to me continued to remain in my account. यानी कि गुरुजी ने फ्री टिकट दी लड़की को एडिनबरा जाने के लिए और वो 1,07,000. मैंने सोचा अभी वापस मांगेंगे. महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया. I put it in some mutual funds after that. But then Guruji knows what he is doing, how he is doing. He also knew for me as a army man, when you send your child abroad, you spend 50-60 lakhs, at that time. So for me, every rupee was very important. So Guruji gave me a soft loan with 0 interest. He gave me this money. And towards the end of the year, the HDFC people gave me a call.
जैसे कि सर वो गलती से आपके पास हमने इतने पैसे भेज दिए थे, नाउ वी आर लीगली वी कांट आस्क यू फॉर दैट मनी बट समबडी विल हैव टू पे फॉर इट। तो अगर आप ये पैसे वापस कर दें तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर देने वाले भी वही हैं, वापस भी उन्हीं का आदेश है। सो दैट्स हाउ द मनी वेंट बैक। But you see his benevolence. These things, they are beyond metaphysics. These things are beyond science. These things are beyond algorithms. She reached there and Guruji really looked after her, me and my wife. I think you want to continue after this? Yes, yes. I think you can do that. That the journey. कुछ ना कुछ लेकर जाती है वहाँ पे। उसने अपना उसका अच्छा एक गुरुजी का संगत ग्रुप है, तो अपना गुरुजी उसको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उसने मेरे को कॉल किया कि जब वो जनवरी में गई थी तो गुरुजी का स्वरूप ले गई थी और वहां पहुंच के स्वरूप टूटा हुआ निकला। तो मैंने उससे कहा था कि कोई माड़ा समय आने वाला होगा तो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है, सो यू कैन चिल नाउ, डोंट वरी। नाउ शी गिव मी अ कॉल एंड शी सेड दैट ये माड़ा समय ये वाला था जो अभी आपके ऊपर आया है, एंड टू प्रोटेक्ट यू he had taken everything on himself in the month of January for an event which was coming in February. Then in the evening my wife was sitting with me and एक हमारी पुरानी संगत है लखनऊ की, तो उनका वीडियो कॉल आया। तो the camera was towards, not towards her, it was actually towards me. So she looked at me, I was in the hospital in the bed, so she said, General Saab, Tonu ki ho gaya? I said, ma'am, I'm a little unwell, so that's how I'm in the hospital. I didn't tell her much. तो she said, कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल अभी। आज हमारे घर में सत्संग हुआ है और गुरुजी के स्वरूप में से बहुत अमृत वर्षा हो रही है, तो मैं एक्चुअली आपको वीडियो कॉल अमृत वर्षा दिखाने के लिए ही किया था। So these all three things happen on 18th. 19th I was rolled into the operation theatre और मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, मैं लेटा हुआ था एंड ऑल दी हार्ट दीज काइंड ऑफ इंटरवेंशंस आप सेंसेस में होते हो। तो डॉक्टर मेरे को स्क्रीन पे दिखा रहा था, सर दिस इज वेयर द ब्लॉकेज इज, दिस इज हाउ वी हैव डन दिस इज हाउ। मैं बहुत दर्द में था, तो मैं गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी मेरे बहुत पीठ में दर्द हो रहा है and I'm not feeling too comfortable. मेरे को आप अपनी presence दिखाओ। I want to get the fragrance of the roses. No, I want to see a butterfly. No, my imagination was running wild in the operation theatre. There's no butterfly which can ever come. But then I was speaking to Guruji, asking him कि मेरे को गुरुजी आपकी presence देखनी है। I have to feel it. But Guruji never came. So everything was over and I was sent back to the critical care, and in the evening the cardiologist came to look me up. So he asked me about my well-being, आप कैसे हैं sir and all that. Then he asked me कि sir ये जो किताब आपके पास पढ़ी है, मैं कल भी आया था, आप ये पढ़ रहे थे, ये कौन है? So I told him, I said ये मेरे परमात्मा हैं, हम इनकी शरण में ही रहते हैं। और I told whatever I had to tell about Guruji. So he said कि सर 8 साल पहले मैं एक सत्संग में गया था एक ऑफिसर के घर, उनकी वाइफ जो थी उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। तो मेरा पहला जो रूबरू या इंटरेक्शन था गुरुजी से तब हुआ था, एंड दैट वाज माय लास्ट इंटरेक्शन। इसे मैं इनको ना मानता हूँ ना मैं इनसे ज्यादा मेरा उसके बाद कभी संपर्क हुआ है। पर कहते हैं सर जब मैं वहां से जा रहा था उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया था और कहा था इसको अपनी जेब में जरूर रखना, ये आपको भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे और आपके आसपास वालों को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो इस से मैं मानता नहीं हूँ इनको, पर मैं रखता इनको अपनी जेब में हूँ। और जब मैं आपको ऑपरेट कर रहा था तो मेरा जो ऑपरेशन गाउन था
उसकी ऊपर वाली पॉकेट में ये स्वरूप था. So these are not coincidences. I was seeking his presence. He was overseeing the entire operation. This is how he is. वो सब कुछ जानते हैं. He just knows everything. I have done so many operations in the Indian Army, in the Kargil, in the Siachen Glacier, in Eastern Ladakh, counterinsurgency. But this operation was a tough one. मैं इस operation को I call it Operation Widow Artery. Doctors will understand this terminology. And that is where it was his divine intervention that I'm absolutely fit and fine. And it's the grace of Guruji. जे ना फड़दा वो साड़ी बाँ. मुझे कहते थे keep it short. हाँ? अच्छा. So this was in 2021 में our daughter had to go for her post graduation to University of Edinburgh, right? तो हमने उसकी जो टिकट थी वो we did it with the Qatar Airways. So one stop at Doha and the next landing in Edinburgh. And we did it well on time even now. So next day I requested one of my officers who was handling Nagaland कि मेरे को यार हमारे घर में एक दरबार है परमात्मा का, मेरे को उसमें एक भाला रखना है, तो मेरे को नागालैंड से एक भाला खरीद के भेजो. So after about 48 hours, the spear arrived. मैंने उनसे पूछा कि how much do I pay you for this? कितने पैसे बनते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे इतना पता है कि आप किसी की पूजा करते हो, उनके दरबार में आप ये रख रहे हो. मैं नहीं जानता आप किसकी पूजा करते हैं, पर क्योंकि ये पूजा घर में रखा जाएगा तो ये मेरी तरफ से मेरी ये सेवा है. So सेवा, I'll request all of you to underline it. It's a very important word. सेवा को समझना तभी शुरू होता है जब इनके चरणों में आप समर्पण कर देते हो. It's only then you understand what actually seva means. So the bhala came and गुरुजी के दरबार में भाला लग गया ना. मैंने उसके बाद उनसे पैसे पूछे. Now this was in the month of March, and in the month of November, this officer, he had a very severe brain stroke. तो हमें एयरक्राफ्ट एक्विजिशन करना पड़ा रजिस्टर्ड चार्टर्ड करके, एंड वी फ्लो हिम टू कोलकाता. कोलकाता में आर्मी का बहुत बड़ा कमांड हॉस्पिटल है, तो हमने उनको वहाँ पे मूव कर दिया. और जब न्यूरो सर्जन से बात हुई तो उसने कहा कि सर इनको बचाना बहुत मुश्किल है. इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट केस टू प्रोटेक्ट. उन्होंने बताया सर देयर आर ओनली 3 सिनेरियोस. सिनेरियो 1, बी प्रिपेयर टू रिसीव द बॉडी इन द मॉर्चरी. सिनेरियो 2 था कि अगर बच भी गए तो लाइफ लॉन्ग पैरालाइज्ड रहेंगे. और सिनेरियो 3 था कि अगर बच भी गए तो इनकी जो मेमोरी है वो जा चुकी होगी. ही वुड हैव लॉस्ट हिज मेमोरी. एनीवे, तो जब उनका ऑपरेशन चल रहा था, मैं और मेरी आंटी हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और अरदास कर रहे थे कि गुरुजी इसके बच्चे बहुत छोटे, इसके ऊपर अपनी रहमत जरूर बख्शीश करना, इसको बचा लेना. एनीवे, सो द ऑपरेशन वेंट थ्रू. नेक्स्ट डे उसको फिर वो क्रिटिकल केयर यूनिट में जहाँ ले गए, दे पुट हिम ऑन वेंटिलेटर फॉर अबाउट 5-6 days. 5-6 दिन के बाद जब उन्होंने वेंटिलेटर को हटाया तो उसकी वाइफ वहीं पे थी. So he looked at his wife and he smiled, which meant he was alive, his memory was intact, and he moved his hands and the toes, which means he was not paralyzed either. So he had beaten all 3 scenarios.
So later on when I asked, और वो जो टीम थी न्यूरो सर्जन्स की, उनके पास एक टेम्पररी ड्यूटी पे एक यंग मेजर साहब आए थे, who was undergoing, was intern for neurosurgery. So they said, ऐसा केस कभी कभी मिलता है, so you practice your operation skills on him. No, so he was actually being used like a laboratory animal. So we asked him कि आप तो कह रहे थे कि बंदा बचेगा नहीं, ये तो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है. So we asked that मेजर साहब, वो कहता है कि सर मैं अपने सीनियर्स को नहीं बता सकता कि ऑपरेशन कैसे हुआ है, क्योंकि वो समझेंगे कि मैं थोड़ा सा आई एम आउट ऑफ माई माइंड. कहता सर मैं जब ऑपरेशन कर रहा था, there was some supernatural energy which was holding my hand and telling me how to move the beta knife. कहता है सर मेरे कंट्रोल में ये ऑपरेशन था ही नहीं, ये ऑपरेशन कोई सुपरनैचुरल एनर्जी थी, वही कर रही थी, इनके ऊपर किसी की बड़ी मेहरबानी है. Then we knew who was actually controlling this entire operation. So that officer, I met him after a long time, though we've been speaking 17th of this month. So he had come, I had taken him for dinner outside. तो कह रहा था कि सर बाद में मैं अपने papers लेकर after 6-7 months of medical treatment, so I went to the doctor for a review. So the doctor said कि दोनों हाथ से मेरा हाथ पकड़ो और जोर की दबाओ. We wanted to see, you know, how are the nerves functioning, is the neuro system all right. तो कहता मैंने दोनों हाथ से दबा दिया डॉक्टर का हाथ, एंड द डॉक्टर मौजा है. Every month there is a satsang. But anybody who comes here, he comes only because it is his meher. उनके बिना बुलाए इस दरबार में कोई नहीं आ सकता. मैं आज ऑफिस में था, you know, she called up my wife and it was his hukum that even I have to be here. Bin bhaga satsang na labe. So we are very privileged that we are at his lotus feet in his sharan, and may he always keep us at his lotus feet. मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ आर्मी में रही है, बड़ी अच्छी रही है. आर्मी में लाइफ इज टफ, बट गुरुजी के रहते वो कठिन समय और मुश्किल समय तो बड़े प्रेम पूर्वक निकलता गया. मैं चंद एक छोटे सत्संग सुनाऊंगा of my association in the armed forces and how Guruji came and protected us. ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2016 की बात है. मैं तब लखनऊ में था और उस टाइम पे मैं कर्नल होता था. मैं प्रमोशन पे उस टाइम पे जा रहा था, ब्रिगेडियर के रैंक पे. तो मेरे को, मेरी वाइफ को और बच्चों को लखनऊ में ही छोड़ना था क्योंकि एकेडमिक सेशन था. सो दे हैड टू स्टे देयर ओनली, एंड मैं जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में, आसाम और अरुणाचल साइड में. सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट पोस्टिंग. तो गुरुजी का जो स्वरूप था, मैं जनरली अपने बैग सूटकेस में रखता था, उसको अच्छी तरह से पैक करके बबल पेपर, थोड़ा सा कुशन लगा के, जिससे कि स्वरूप ठीक ठाक पहुंचे. तो जब मैं असम पहुंचा और मैंने अपना सूटकेस खोला, मेरा सूटकेस बिल्कुल परफेक्ट था, नो मूवमेंट ऑफ एनी क्लोथ्स. तो जब गुरुजी का मैंने स्वरूप उठाया और उसको खोला तो वो स्वरूप पूरी तरह से टूटा हुआ था. कांच भी टूट गया था, फ्रेम भी टूट गया था. तो आई फेल्ट लिटिल अनकंफर्टेबल. मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना. एंड आई इमीडिएटली सेंड गुरुजी स्वरूप फॉर गेटिंग इट अगेन रिपेयर्ड. एंड मैंने बाकी सामान तब नहीं खोला.
1-1.5 घंटे में गुरुजी का स्वरूप बन के वापस आ गया और फिर मैं गुरुजी के पास बैठ गया. Next day the normal routine started. I picked up my rank, and when this happened, when I opened the suitcase, it was about 6 in the evening. और 48 घंटे के बाद, यानी कि 2 days after this, my wife was going for a satsang in Lucknow. तो ये एक बड़ी मजबूत गाड़ी में थी, इनके साथ 2 संगत और थी, और इनका जो है बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया. So the vehicle was smashed from all sides, and but nothing happened to them. एक खरोंच भी नहीं आई. So Guruji had actually absorbed the entire event of this accident 48 hours prior to it happening. 48 घंटे पहले गुरुजी ने अपने उस स्वरूप के अंदर सब कुछ एब्जॉर्व कर लिया था जो ये एक्सीडेंट होने वाला था. गुरुजी कहते थे that I take 90% on myself, 10% is your karmic debt, part of your karmic cycles. पर इस केस में गुरुजी ने मेरे ख्याल से 100% अपने ऊपर ले लिया, and nothing happened to them. उस रात को जब आंटी ने मुझे बताया तो I was little uncomfortable. There was anxiety in the system. तो रात को गुरुजी, देखिए गुरुजी आपकी हर पल पल पे आपके साथ चलते हैं. He knows what you are thinking. He knows what you are going through. तो उस रात को गुरुजी सपने में आए, and since I had Arunachal, Assam, some portions of Nagaland also under my jurisdiction, तो गुरुजी एक नागा सोल्जर की ड्रेस में आए. उन्होंने राइडिंग पट्टीज पहनी हुई थी, एक छोटी नागा स्कर्ट पहनी हुई थी, एक आधी नागा जैकेट पहनी हुई थी, और साथ में उनके हाथ में एक भाला था. और वो मेरे को बोले कि मैं तेरा ते तेरे परिवार दा बॉडीगार्ड, तेनू ते तेरे परिवार नू कदे कुछ नहीं होएगा. So I immediately got up. I said, Guruji, thank you so much. I was so uncomfortable in the evening. And मैंने जो गुरुजी को सपने में देखा, मेरे पास एक कागज पड़ा था, उस कागज पे मैंने पेंसिल से I just drew what I saw.